Hello friends, welcome back. And like I told you, we are going to start with the today's chapter or today's topic जिसका नाम है article. Hope so everyone is fine. So let's start. आज का चैप्टर क्या है वैसे हमारा? Article. By the way, what is article? We all have heard there are a and the, this kind of things are there. It comes under article. वैसे कितने टाइप के होते हैं? How many types are there? There are most probably two types. Definitely there are two types. First is yours definite article. First is your definite article and second is indefinite article. पहले तुम्हारा definite article and second is yours indefinite article. Now ma'am, what is the difference? What is the difference between definite article and indefinite article? See, in indefinite article, there are two things. First is your a or a and second is your an. And in definite article, we have the. Now how we use a, an and the? इसको हम use कैसे करते हैं? Right? Most probably many students have confusion between this a and or the. तो आज हम step by step very slowly I'll be telling you how we are going to use this articles. Okay? So let's begin. अब सबसे पहले हम बात करते हैं हमारी and की, which is very easy because due to elimination method or because of elimination method we can easily find the answer from and. जब भी कोई आंसर हो, see what I am teaching is related to your competitive examinations also. 8, 9, 10th के बच्चे भी पढ़ सकते हैं, 11, 12 के बच्चे भी पढ़ सकते हैं and also the competitive exams level. Okay, so elimination method use कर सकते हैं हम and के लिए. Whenever questions come and you are not sure कि a आएगा, an आएगा, कोई definite आएगा या indefinite आएगा. For that reason सबसे पहले हम बहुत easy way से जाएंगे. So first is what your an. अब an कहाँ पर use करते हैं by the way? Any idea? Guess. Yes. And कहाँ पर यूज होता है? Vowels. Now what is vowels? जिसको पता नहीं है, for them vowels are A, E, I, O, U. Okay? Vowels क्या होते हैं वैसे? A, E, I, O and U. Now I pronounce it as U. I will tell you why I did that and what is the reason behind that. Now let me tell you. Most probably what we pronounce this vowels as A, E, I, O, U. As it is written U, but the pronunciation is not U, it's U. The pronunciation is not U, it's U. Okay, so the pronunciation would be A, E, I, O, U. Everyone clear? Yes? अब मैम आपने तो ऐसे बता दिया इसके pronunciation U होता है. Are you sure कि U ही रहता है? Okay, let me tell you. जब भी हम यूनिवर्सिटी लिखते हैं एवर वी राइट एन यूनिवर्सिटी? नो. व्हाई? बिकॉज यूनिवर्सिटी भी हो अगर उससे पहले हमने बोला है कि वॉवल्स से पहले वी आर गोइंग टू यूज व्हाट? एन. राइट? इफ आई एम सेइंग दिस थिंग मीन्स बिफोर यूनिवर्सिटी इज फॉर श्योर दैट एन इज गोइंग टू कम, बट अनफॉर्चुनेटली या तो आ ही नहीं रहा है. देन व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? बिकॉज द प्रोनाउंसिएशन. इट्स प्रोनाउंसिएशन इज नॉट यू, इट्स ऊ. ड्यू टू विच वेन एवर वी प्रोनाउंस यूनिवर्सिटी we never pronounce it university, it's university. और u करके यहाँ पर कुछ है नहीं. दो letter stands in vowels, u letter आ रहा है vowels में, but then to the pronunciation matters a lot. ठीक है? जैसे कि r बोल रही हूँ मैं, sorry, h, if. अगर हम r बोलते नहीं, an r बोलते ना, please wait for an r. Okay? एन आर बोलते हैं, वहाँ पर थोड़ी एच है, एच इज देयर, दिस लेटर इज देयर इन द वोवल्स, बट देन टू वी यूज एन. एन व्हाई? रीजन बिहाइंड दैट इज सी द प्रोनाउंसिएशन. आर, ए, ई, आई, ओ, ऊ, ये प्रोनाउंसिएशन है. ठीक है? इस वोवल्स में वी प्रोनाउंस यूजुअली ए, ई, आई, ओ, ऊ. ड्यू टू विच इसके पहले क्या आना है भाई? एन आना है. एनी डाउट? व्हेनेवर यू से यूनिटी, एन यूनिटी बोलते हो तुम लोग? यूनिटी बोलते हो, यूनिटी थोड़ी है वो. व्हेनेवर वी pronounce this word as unity. Unity का pronunciation कहाँ से आ रहा है? U से. But word starts from letter तो U दिख रहा है.
ओके दिख रहा है मैम, तो फिर एंड क्यों नहीं यूज कर सकते? यही बता रही हूँ मैं. द सेम थिंग आई एम ट्राइंग टू से इज दैट द प्रोनाउंसिएशन फॉर दिस वोवल इज ए ई आई ओ ऊ, नॉट यू, ड्यू टू विच यूनिवर्सिटी यू से शुरू हो रहा है, यू से प्रोनाउंस हो रहा है, ड्यू टू विच व्हाट हैपेंड विथ ये एन नहीं आएगा उधर. क्लियर? ओके, क्लियर विद दिस एन. अब आते हैं ए के पास. बहुत जन कंफ्यूज रहते हैं मैम ए को कहाँ यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है. पहली बात तो एकदम दिमाग से निकाल दो. whatever you have whatever confusion you have till the date, keep everything aside and please trust me. I will be telling you and a और ये द कहाँ यूज़ किया जाता है. ओके, अब मैं कह रही हूँ तुम्हें कि ये तुम्हारा अ है, राइट. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू, ये अ जो होता है वो सिंगुलर थिंग के लिए यूज होता है. ओके, इट इज ओनली फॉर यूज फॉर सिंगुलर वर्ड से, लेटर से ही पता चल रहा है कि ये कोई प्लूरल के लिए यूज होने वाला है. ओके, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए ही यूज होगा, नॉट फॉर प्लूरल. इजी? एनी डाउट टिल हियर? नाउ other than vowels, other consonant. Okay, what I am saying, other than vowels, consonant के पहले अ हम लिखते हैं. Okay, so whenever somebody asks you, okay, you are clear with an, tell me what about a, where we are going to use this a. तो a का यूज कहाँ पर होना है भाई? Yes, a का यूज हमारा कॉन्सोनेंट के पहले हो रहा है. ठीक है, अब ये कॉन्सोनेंट क्या है मैम? इसको छोड़ के जो भी है वो तुम्हारा कॉन्सोनेंट है. आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू अ वेरी हार्ड थिंग और हार्ड डेफिनेशन फॉर दिस. मैं यही बोलूँगी कि इसको छोड़ दो और जो भी है वो तुम्हारा कॉन्सोनेंट है. इजी? एनी डाउट? सो यूज बिफोर consonant. Yes, clear with an and a. We are going to take many examples. Don't worry about that. अब इसका मैं example देती हूँ. A cup, a stamp. ये क्या है? Singular है. Consonant. C थोड़ी हमारा vowels में आ रहा है. Do it come in vowels? No, it won't. ठीक है, तो यहाँ पर क्या है तुम्हारा? A cup, a stamp. These are the examples. Okay? Clear? So you are clear. Hope so you are clear with a and an. Now let's move to definite article. Now what is definite article? What is definite article? और definite article में क्या आ रहा है? द आ रहा है, right? What is definite article? अच्छा, definite से ही पता चल रहा है. जैसे हम अपने फ्रेंड्स को बोलते हैं डेफिनेटली तो पास हो जाएगा. We usually say that, don't worry guy, डेफिनेटली तो पास हो जाएगा. डेफिनेटली तुम बोल रहे हो, मतलब क्या बोल रहे हो भाई? तुम डेफिनेटली श्योर हो किसी चीज़ के बारे में? Yes, you are damn sure about, हाँ this thing is going to happen, don't worry about that. So definitely कोई अगर चीज़ पता हो तो वहाँ पर हमें द स्पेसिफिक कोई चीज़ पता हो रिलेटेड टू एनीथिंग, देन वी मोस्ट प्रोबेबली यूज द ओवर देयर. एनी डाउट? नो. अब यहाँ पर कुछ बुक वाली डेफिनेशन आई हैव रिटन ऑन द सेकंड स्लाइड. आई विल रीड फॉर यू. ओके, एंड देन if you want I will explain one more time for a revision and then we are going to solve the questions so that clear crystal हो जाएगा. ओके, अब यहाँ पर मैंने नॉट टू वेस्ट टाइम इसलिए मैंने ये लिख कर रखा है कि जो बुक की जो डेफिनेशंस होती है, विल सी वॉट एवर आई हैव सेड इज द सेम और नॉट, राइट. सो यहाँ पर क्या लिखा है? एन. अच्छा, पहले इनडेफिनाइट आर्टिकल का लिखा है तो विल रीड दैट. फर्स्ट इज व्हाट? एन. एन इज यूज्ड बिफोर सिंगुलर. एन इज यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन beginning with the sound of vowels. अब इसका pronunciation बताया था मैंने. What is the pronunciation? A, E, I, O and U. No, U. Clear? So pronunciation for vowels would be A, E, I, O, U. हाँ, sound थोड़ा अजीब लगेगा but it's fine. Okay, you have to solve question. You don't have to tell anyone to please listen how I pronounce. ओके, सो क्लियर विद दिस. इनडेफिनाइट का एन क्लियर हो गया? हाँ जी, क्लियर हो गया. तो अब दूसरा जाते हैं. दूसरा क्या है भाई तुम्हारा? इनडेफिनाइट में ही ए. नाउ विल रीड. ओके, विल सी द एग्जांपल्स. एन एप्पल, एन एग, एन अम्ब्रेला. नाउ सी यू इज हियर but the pronunciation is umbrella, right? So a, e, I, o, u,
U. Clear? तो यहाँ पर दो it is U, but the pronunciation is umbrella, right? For that reason we are using what? And before that word. Any doubt? No. Next, an hour. Again I gave you the same example when we are doing that an वाला. ठीक है, वहाँ पर मैंने क्या दिया था? And दिया था, right? And बोला था. Can see. The pronunciation is R. Pronunciation is R. Yes? So an R. Any doubt? An R. Okay? Now O. O is used before singular countable noun beginning with consonant. The same thing what I told you is written on the board, right? A is used before singular, yes, countable noun beginning with consonant. अब consonant तो बताया था मैडम ने, हम consonant के other than vowels. For you I have written each and every definition in very layman language, right? So I want you all guys to not get deflect, and if you have made any notebook, please do write in that notebook this layman definitions. Okay? इतनी easy definition कहीं नहीं मिलने वाली. Okay? So make sure you write it. हो गया. अब इसके एग्जाम्पल बताइए तो ज़रा. A cup, a stamp, right, etc. जगह नहीं है यहाँ पर. Can write this example. Now let's move further. अब ये तो हमारा डेफिनेट था कि इनडेफिनेट था, पहले वो बताइए. ऑफ कोर्स डेफिनेट में पढ़े थे ना हम. डी को द को किसका कहाँ पर पढ़े थे? डेफिनेट में पढ़े थे. अब डेफिनेट की डेफिनेशन सुन लिए. इज यूज्ड बिफोर सिंगुलर एंड प्लूरल काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन. ये काउंटेबल के लिए भी यूज होता है और अनकाउंटेबल के लिए यूज होता है. डोंट फॉरगेट अबाउट दिस. ओके? सो द हमारा singular or plural countable and uncountable noun to specify a particular noun. I told you specifically एक आधी चीज़ के लिए बताया जाता है इसको. तो specific, particular, specifically a particular noun. जैसे the door, you know, we are talking about कोई बहुत सारे डोर्स के बारे में बात नहीं करें ना, स्पेसिफिक एक डोर के बारे में बात करें तो वहाँ पर हमें क्या आएगा? द डोर. ओके? नाउ द क्लोथ्स. द क्लोथ्स क्लोथ्स हो गए. ये तुम्हारे क्लोथ्स हैं, ये अपनी फ्रेंड के क्लोथ्स है, ये मेरे क्लोथ्स. स्पेसिफिक क्लोथ्स के बारे में बात करें. ठीक है? अनकाउंटेबल भी बताया मैंने. ओके? बट स्पेसिफिक. अब विंड है. विंड का थोड़ी विंड तो एक ही रहती है. विंड आ रही है, विंड जा रही है. सो देयर वी आर गोइंग टू यूज द विंड. फिर क्या है? पास्ट. पास्ट एक ही है. तुम्हारा पास्ट है, तुम्हारा ही है. मेरा पास्ट, मेरा ही है. ओके? सो दिस आर द एग्जाम्पल्स ऑफ व्हाट? द डेफिनाइट आर्टिकल के. एनी डाउट? क्लियर? श्योर? एक प्रॉपरली मैं फिर से समझा रही हूँ. इफ यू रियली हैव एनी डाउट कैन सी. विल यूज वन मोर स्लाइड, क्विक रिविजन एंड देन विल सॉल्व क्वेश्चंस. ओके? नेक्स्ट. क्विक एक रिविजन होगी. आर्टिकल कितने टाइप के होते हैं? एक डेफिनाइट होता है और एक होता है इनडेफिनाइट. ओके? एक होता है इनडेफिनाइट. बताइए इनडेफिनाइट में कौन से हाँ जी. वन इज ए एंड सेकेंड इज एन. यस, एक ए है और एक तुम्हारा एन है. एनी डाउट? नो डाउट. ओके. और डेफिनाइट में तो भाई एक ही रह जाए, मैं डेफिनेटली मैं ही आना है. ठीक है? सो इन सॉरी डेफिनेट में क्या है? द. Any doubt till here? Now tell me where is an used and before what? So an is used before vowels. Use before vowels. अब जिनको vowels पता नहीं उनके लिए A, E, I, O और U. लिखने में U, प्रोनाउंस करने में U. Okay, then comes A. Use before what? Use before consonant.
यूज बिफोर व्हाट, कॉन्सोनेंट। अभी कॉन्सोनेंट क्या होता है? सी, if any hard word come, I am here, I am giving what is the meaning of that word while writing way, okay, in written manner. So consonant, letters other than vowels, उसको क्या बोलेंगे? What will call that? Consonant. Clear? फिर आता है, इसके तो एक ट्रिक याद रखना, डेफिनेटली जो चीज़ है वो टू डिनोट singular and plural, countable and uncountable noun. Okay, इस वर्ड को लिख के दिया है ब्रैकेट में. द रीजन बिहाइंड दैट इज टू मेक श्योर कुछ स्पेसिफिक सा है, कुछ डेफिनाइट सा है. ये वर्ड जब तक आपके दिमाग में नहीं है तब तक वी विल हैव कंफ्यूजन बिटवीन द एंड ओ. सो डोंट वरी अबाउट दैट. तो अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. ओके, सो वी व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू डू क्वेश्चन. अब यहाँ पर तुम्हारी टेस्ट होगी भाई, कितना आता है तुम्हें, कितना समझा है. ओके, सो लेट्स बिगिन. Tell me, I'll be reading question for you, will not come in between, so that please read. Take 2 minutes and read it. Okay? Okay, you got sufficient time? Chalo. Pehla question. First question is what? She picked up dash fallen plates and carried it to dash wash basin. Now, whenever you find any kind of questions related to article, make sure that you follow or you go with the elimination method. Madam, ये elimination क्या है? What is this elimination? Elimination method is something that all the aspirants do follow usually. कि क्या होता है यहाँ पर, जो चीज़ हमें आती है पहले वो लगा कर देखो, वो नहीं हो रही है तो फिर गो ऑन द नेक्स्ट थिंग. ओके, तो यहाँ पर वी आर वेरी श्योर अबाउट एन. चेक करो एन आ रहा है, कोई वोबल दिख रहा है आपको? रीड वन मोर टाइम. शी पिक्ड अप डैश फॉलन. फॉलन क्या है तुम्हारा? फॉलन, इज देयर एनी वोबल? नो, तो एन तो आना नहीं. ठीक है. शी पिक्ड अप डैश फॉलन प्लेट एंड कैरीड इट टू डैश वॉश बेसिन. क्या लग रहा है आपको, व्हाट विल कम? एनी आइडिया? Come on, try. अब आपको पता है फॉलन प्लेट है. यस, एक ही के बारे में बात कर रहे हैं. यस, सिंगुलर काउंटेबल. उसकी एक प्लेट गिरी एंड कैरीड इट टू डैश वॉश बेसिन. अब वॉश बेसिन तो स्पेसिफिक है ना, यहाँ हर घर में एक ही वॉश बेसिन होता है कि 4-5 होता है? हाँ, हो भी सकते हैं, नो डाउट इन दैट. मेरे घर में एक ही. ओके, so come back. She picked up dash fallen plate and carried it to dash wash basin. अब एक ही fallen plate है, वो क्या आएगा? वो आएगा sure. Yes, you should be sure to your answer. Yes, what will come? She picked up a fallen plate and carried it to what? वो आएगा, एन आएगा. एन तो आना नहीं है. एन क्यों नहीं आना है? The reason behind that is वॉवल नहीं है मैम कोई. ठीक है, तो क्या आना है? You know, the will come. Why? Specific. Okay? Easy? Next. ठीक है, we'll read first question with answer. She picked up a fallen plate and carried it to the wash basin. Any doubt? No? Now go to the second one. What is second? Second question is trying to say what? You need to make dash plain or plan. Okay, you need to make dash plan. Now tell me, it's not plain by the way. यहाँ पर कुछ गलती हुई है. ये plan था भाई, मैं सोचूं. It's plan. Tell me, you need to make dash plan. क्या आ सकता है यहाँ पर? What will come?
आर यू श्योर व्हाट काइंड ऑफ, ओके फाइन, एलिमिनेशन मेथड, पहले एन लगाओ, एन बेटर, नो मैम देयर इज नो वोवल सच काइंड ऑफ थिंग्स, देन डू यू थिंक एन आएगा? नहीं, एन तो गया, एन ए एंड द, एन नहीं है। अब द और ए में देखो, कोई स्पेसिफिक पता है तुम्हें कौन सा प्लान, क्या प्लान? हम घर जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, कोई एग्जाम देने जा रहे हैं, यू नो एनीथिंग व्हाट काइंड ऑफ प्लान दे, स्पेसिफिकली तुम्हें कुछ पता ही नहीं है व्हाट काइंड ऑफ प्लान दे आर गोइंग टू मेक, सो व्हाट इज गोइंग टू कम? और प्लान, ये भी नहीं आएगा, बस इसकी इनको बुलाइए, ए आएगा। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, द रीजन डैश मदर इज पॉजिटिव इज दैट शी लव डीपली डैश चाइल्ड शी बोर। नाउ चेक वेदर एन इज गोइंग टू कम और नॉट। एन आ रहा है या फिर नहीं? वाई एन किसके पहले आता है, किसके बाद आता है, किसके पहले? पहले किसके आता है? वॉवल्स के। वॉवल दिख रहा है? एम से कोई वॉवल था, बताया था मैंने? नहीं तो अब बताइए क्या आएगा? द रीजन डैश मदर इज पॉजिटिव इज दैट शी लव डीपली डैश चाइल्ड शी बोर। बताइए, आपको पता है? अच्छा, एन नहीं आ रहा है, ओके, फिर से यहाँ पर एन कट कर दो, ए और द में पूछो क्या आ सकता है। डू यू नो विच अबाउट हुज मॉम वी आर टॉकिंग? स्पेसिफिकली मेरी मम्मी के, वैष्णवी मैम की मम्मी के बारे में बात कर रहे हैं? नहीं जी। आपकी मम्मी के बारे में बात कर रहे हैं? नहीं। ओके, ना हुज, यू डोंट नो ना, तो स्पेसिफिकली कुछ पता नहीं है, तो द तो आना नहीं है। क्या आ गया? ओके फाइन। द रीजन अ मदर इज पॉजिटिव इज दैट शी लव डीपली डैश चाइल्ड शी बोर। अब तुम्हें कुछ तो स्पेसिफिकली पता है कि किसके बच्चे के बारे में बात कर रहे हैं? खुद के, मॉम के खुद के बच्चे के बारे में। नाउ यू स्पेसिफिकली हैव आइडिया अबाउट दैट वी आर टॉकिंग अबाउट दिस मदर्स चाइल्ड, यस और नो? तो यहाँ पर वेरी इजीली आंख बंद करके तुम्हें द लिखना। अच्छा वो भी छोड़ो, चाइल्ड सी करके कुछ, च और चाइल्ड करके कुछ मैंने वॉवल्स में बताया था, तो एन तो वैसे भी नहीं आना है वहाँ पर, और द में कंफ्यूजन था, तो सेंटेंस ही बता रहा है कि उसके स्पेसिफिकली बच्चे के बारे में बात कर रहे हैं, सो स्पेसिफिकली कुछ बता रहा है। अगेन डेफिनेटली यू नो समथिंग, देन द इज गोइंग टू कम, यस। ओके, चलो फोर्थ क्वेश्चन, फटाफट से रीड इट। क्या क्या क्वेश्चन बोल रहा है? पॉलिटिशियन, अच्छा must, there is no space I have given, sorry. Politician must refrain from inciting dash few people and in turn disturbing peace. Now this is the question, tell guys what is going to come first. Read it. Politician must refrain from inciting dash few people and in turn disturbing peace. क्या आ सकता है? few people, फर्स्ट ऑफ ऑल फ करके ऐसे कुछ तो आने नहीं वाला है, किसमें? तुम्हारे कहाँ, ऑफ कोर्स एन के पहले, एन के बाद नहीं आना है बिकॉज वोवल नहीं है वो। ओके, अब बचा क्या? द। एनी आइडिया? यू नो फ्यू पीपल में स्पेसिफिक किसी पीपल के बारे में बात करें, कोई पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, दो ना, तो क्या आएगा वहाँ पर? यू वांट मी टू राइट? हाँ, अगर नहीं भी चाहते तो भी मुझे तो लिखना पड़ेगा, राइट? तो वहाँ पर क्या आएगा? वो आ जाएगा, वेरी इजी, और इज गोइंग टू कम। पॉलिटिशियन मस्ट रिफ्रेन फ्रॉम इंसाइटिंग अ फ्यू पीपल एंड इन टर्न डिस्टर्बिंग पीस। डन? एनी डाउट? श्योर, होना ही नहीं चाहिए। ओके, फिफ्थ, politeness and humility are dash trademark characteristic of dash learn. अब कुछ तो स्पेसिफिक बताया है, I'm just coming in between, not disturbing you. Politeness and humility are dash trademark characteristic of dash learn. Now tell me what will come. फटाफट से बताइए जी, क्या आ सकता है वहाँ पर? Politeness and humility are, अब तुम्हें पता तो चल गया कि ये दो क्वालिटी, द सेंटेंस इज ट्राइंग टू स्पेसिफाई अबाउट टू क्वालिटीज, यस और नो? कि पोलाइटनेस एंड ह्यूमिलिटी आर डैश ट्रेडमार्क कैरेक्टरिस्टिक। अब दो स्पेसिफिक क्वालिटी के बारे में अगर तुम्हें बताया जा रहा है तो आँख बंद करके तो तुम द लिख ही दोगे, क्योंकि मैडम ने यू हैव सेड अबाउट दैट स्पेसिफिक, इफ द सेंटेंस इज ट्राइंग टू से समथिंग स्पेसिफिक, वहाँ पर क्या आना है? द आना है, very easy. Politeness and humility are the trademark characteristic of dash learn. अब dash learn है तो यहाँ पर भी आपको बताया ना किन के बारे में बात कर रहे हैं,
लर्न पीपल के बारे में बात कर रहे हैं, जो पढ़ाई नहीं, जो एजुकेटेड पीपल, सम व्हाट द सेंटेंस इज ट्राइंग टू से. तो द लर्न ना स्पेसिफिकली, अ लर्न थोड़ी आएगा वहाँ पर, राइट. बस और 5 कर ही रहते हैं मैम. ठीक है, और क्वेश्चंस. नाउ योर सिक्स्थ क्वेश्चन इज वायलेंस एंड साइलेंस आर नॉट डैश ओनली वे टू एक्सप्रेस. अब यहाँ पर अगेन लाइक फिफ्थ क्वेश्चन व्हाट दे हैव गिवन टू स्पेसिफिक quality, violence and silence. Now tell me what will come. Now this time it's your turn to answer. बहुत easily, बहुत easy है. Yeah, I don't want to waste time over here. It's exactly what like fifth question. Okay. So violence and silence are not the only way to express anger. Clear? अब seventh question करते हैं. Dash I for I was about to tell the answer but I stopped. Okay. Dash I for dash I and dash tooth for dash tooth will make dash whole world blind and toothless. Now tell me what is going to come. अब यहाँ पर वॉवल का कुछ तो साउंड हो रहा है मैम. हाँ, आँख बंद करके क्या लिखना है? एन लिखना है. एन आई फॉर एन आई एंड. अब बताइए यहाँ पर क्या आएगा? अब टूथ है सिंगुलर, वेरी इजी. An eye for an eye and a tooth for a tooth will make dash whole world blind and toothless. Now tell me what is going to come over there. Very easy, बहुत easy है. अब यहाँ पर फिर से specifically बताया ना, an eye for an eye sorry, an eye for an eye and a tooth for a tooth will make the world. I said the answer. And make the world. And make the whole world blind and toothless. Any doubt? Okay. Next. 8. चलो आप solve कीजिए इसको. It is better to forgive and forget rather than carry a dash hurt like dash uneasy burden. Question is what? मैं थोड़ा side में जाती हूँ so that you would read the question. It is better to forgive and forget rather than carry dash hurt like dash uneasy burden. Right? क्या आएगा? स्पेसिफिकली बताएं. The hurt like uneasy and. Okay? Any doubt? Sure? Okay. चलो next question. Hope so you are clear with what kind of tricks or rules we have learned, and according to that we are what we are doing, solving the questions. Okay, अब 9th question क्या बोल रहा है? What question number 9th is trying to say? Uneasy lies dash head that wear dash crown. अब बताइए यहाँ पर क्या आएगा? Uneasy lies dash head that wear dash crown. Tell me what will come. Whenever article, जैसा आर्टिकल के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा, रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली, डू फॉलो एलिमिनेशन मेथड एंड डू सॉल्व द क्वेश्चन. क्लियर? नाउ uneasy lies dash head that wear dash crown. Tell me what will come over there. Uneasy lies the head that wear the crown. Again, you know why the is going to come over there. Okay, अब जाओ 10th करिए. 10th, dash stitch in time saves 9. Okay, this is again idiom. Idiom भी हम करेंगे in further lectures. Okay, we'll be doing idiom. What is idiom? Many people pronounce it as idiom. It's not idiom or something like that. The pronunciation is idiom. Okay. idiom क्या होते हैं? वैसे मुहावरे जैसे होते हैं. मराठी त्याला म्हण म्हणतो आपण. Okay. So idioms. Okay. Come back and answer the last question. Dash stitch in time saves 9. Very easy. A stitch in time saves 9. This is how we have completed with all the questions of article. Okay. If you guys have any doubt related to this topic, it's a kind request to please ask in comment section. Okay. Any doubt? No, hope so. Clear? So please do watch other videos as well. इसके बाद हम और भी topics लेंगे. I'll be explaining you and will be solving the questions.
together. Okay, so I hope you all are clear with today's topic. और अगर कुछ भी doubt हो तो please do ask. Okay, and stay tuned till the next time. Thank you.